The purpose of human life is to experience love of God in all creations. This is the purpose. This is our goal. But when we observe around, then we do not have this. We practice likes and dislikes. We accept the concept of duality. Then how to practice our real goal? What is our real goal? Just to spread love of God to all and believe in each and every creation. Love of God is there. We should receive them. But because inside we have mind, and mind is blind. And who is mind? Power of God has become mind. Where is power of God? Power of God is with the God. Who is God? Omnipresent Spirit. Formless, omnipresent consciousness is called God, what I want to say. And that God is having so many things within. All are invisible. Just like as within seed, there is a wood, there are leaves, there's flowers, there's fruits, maybe thorn also. Within seed and within germ of the seed, all things are there but invisible. In the same way, imagine there's formless, omnipresent God. Within the whole cosmos exists. From that, one by one, it starts projecting out, just like from the germ seed, we find the roots are coming, then stem are coming, then branches, leaves, flowers, fruits. This germ seed is transformed into big tree. Exactly in the same way. And what should be our aim? Our aim should be accept each and every creation with this concept. The value of each and every creation is infinite. Glory is infinite. You cannot say good, better. You have only one language, best. How to practice it? Why we are not able to practice it? Because power of God has become mind. Mind is blind. Why mind is blind? This is the will of God. If mind is not blind, God cannot manifest His consciousness into many. Therefore, because of blindness of mind, God is able to proliferate, God is able to expand consciousness into many. And second, called the wisdom. Wisdom you can say like logic, like a reasoning power. This is also a problem. This logic is just keep on rotating us in illusion. With the help of logic, we are not able to move ahead. You see, the biggest logic, what is explained by Einstein, he selected that light is the unit. This is the basic. This is the most subtle. But he was knowing that mind is more subtle than light. But he could not make any mathematical calculation based on the mind nature. Therefore, he was having stress. Therefore, he wanted next life not to become scientist, to become a spiritual person. Therefore, because of the wisdom and mind, we are not able to see the love of God in all. We do not have this concept, only best exists, there is no better, no good. Then what we have to do? We have to do teaching. This is the self. Self is called when I am one with the mind, then I am self. When I accept nature of reasoning, then I am the self.
When I am with the habit, I am self. This is my self. Then what we want? Self. We want teaching. How to teach our own self. This is very important. Therefore, self need teaching. If self is with the fire, we feel heat. When self is sitting in the fire, self becomes completely fire. We do not want this. We want self to remain self. Then we need teaching. Then what kind of teaching is there? That is the teaching which came from Lahiri Maharshi. Same teaching was present with all prophets of all ages and land. That teaching was not available. If it was available, disciples were not understanding. Therefore, Lahiri Maharshi came, teaching became more available. Now disciples are one with Lahiri Maharshi. Then they became Lahiri Maharshi. One example, Jnanavatar Swami Yukteswar Giri. When he got initiation from Lahiri Maharshi, Yukteswar Giri was practicing the same Kriya by his own. From where he was inspired? From Mahavatar Babaji. But he learned from Lahiri Maharshi. What he was practicing by his own, both are the same. It increases in confidence that he knows things. Therefore, we have to teach our mind and reasoning. And how to teach? Do not have so many thoughts about this. Do not plan lessons. Just follow Kriya Yoga meditation. Decide that we will never stop it. Try to eat so that you can practice. Try to sleep so that you can practice better. Try to remain awake so that you can practice better. Try to work to increase our practice. Each and every action we perform should have one aim, how to practice more. Using eyes to see the things for one aim, how to practice better. Using ear and nose and tongue and touch perception, legs and arms, everything for one purpose, how to practice Kriya Yoga more. The moment I try to discover this, because I want to practice Kriya Yoga more, then I am using my eyes to see. You cannot practice correctly if you practice attachment, aversion on the platform of vision. What vision tells mind? Mind with the help of vision always practice likes and dislikes. No, we will say, mind, please just do not do this. When open your eyes, all are the best. Each and every creation is blessed by infinite beauty. Each and every creation is blessed by infinite glory. If we will not allow mind to practice likes and dislikes, we will not allow reasoning power to prove that yes, it is correct. Therefore, suspend activity of reasoning power and mind. When you are using sense organ, hearing, touch, vision, taste, smell, so that what you perceive, accept each and every perception is the supreme, is the best. What is the supreme? Supreme is the only knowledge. What kind of knowledge? We have three kinds of knowledge: creation, preservation, and change, development. If each and every perception is the best, what is the meaning of best? It is presence of knowledge of all kinds. Do not limit only this. It is presence of power of all kinds. It is presence of eternal peace. It is presence of eternal joy. It is presence of all in all. What is the meaning of all in all? Within each perception you will find there exist prophets of all ages and land. Oh, like this? Mind, reasoning, they want to know how. Oh, do not know how. Practice and you will see it. Try to practice, feel each and every perception. Within each and every perception there exist prophets of all ages and land. First try to see Babaji. Try to practice, you will find you can talk with the Babaji.
You can meet him. You can get direct perception, direct knowledge. Lahiri Mahasaya, Mahatar Babaji, Jnanatarik Tisagiri. You can meet Paramahansa Yogananda. Therefore, Jesus Christ or Buddha or anyone, Bhagavan Ram and Krishna, anyone. Therefore, you have to suspend mind and logic. When you are using our sense organ of hearing, touch, vision, taste and smell, whatever you feel through that, accept. Each and every perception is supreme because within that there exist prophets of all ages and land. Within that there exists, oh my grandfather who departed. Oh, many are in astral world. Many are in causal world. Where are they? Do not worry. Within each perception they exist. All the human beings who left, all human beings who are going to incarnate, all exist within each and every perception. Suspend mind and logic. Practice this, you will find ever new joy, ever new peace each and every moment. This will bring you realization. Now habit cannot control you. Any kind of perception of likes, dislikes, attachment, aversion will not control you. This is the important point. From today onwards, please do it. In India, there is tradition. The child has to shave his head once. It was tradition to go to the goddess temple. I was taken by my uncle to the Vindhyavasini. There my head was shaved. There was tradition to sacrifice animal, cow or buffalo or goat, sheep, anything. Then the priest requested to my uncle, now head is shaved, ceremony is done. Please we need something to sacrifice. Okay, all right. Then my uncle said, I am going to request to the goddess something else. Come. He called the priest, he said, O Mother Divine, I am very stout and healthy and good. I have good fat and muscles. And my Panditji, priest is having good. You can take 1 out of 2. I am not going to offer any animals today. Then you know what happens? That priest ran away in fear. This goddess may take him. But in my saving there was no offering. I was saved from this bad karma. Therefore I went the same place. These temples, what is the need of these temples? Because I don't love my mother and father. I don't see God in my mother and father. I don't love my wife or husband or children. I don't see God in them. Then I need something. Without that, I will be criminal. And there's a thought is created. Okay, all right, come worship a stone. God has become a stone also. God has become a mountain. From your room, you cannot go in room of your mother and father to serve. From this room, you cannot move there to serve. Okay, all right, there's a plan. Now you have to go Vaishno Devi. You have to just walk. I cannot walk, but take rest and walk. Because Divine Mother is there. Why we went to see Divine Mother there? Because we are not able to see Divine Mother, in my father, in my brother, in my sister, in my wife, or husband, or children. Therefore, this arrangement was made. Because of this, crime reduces. India, big population stay together because of the temple worship, because of the stone worship, because we worship river, we worship tree, worship everything. Therefore, we should not criticize about temples, churches and mass. But we should understand this moment you start realizing God within your own things, then you will work like Lahiri Mahasaya. Lahiri Mahasaya was same in Varanasi, which is one of the ancient temple, Vishwanath temple. He never went there.
Ramakrishna Paramahansa used to visit Varanasi in order to have darsana of the Vishwanathan temple. But when he met Talanga Swami, he said, "Oh, Talanga Swami is a living Vishwanath." He used to sit in front of Talanga Swami and meditate, "Oh, he is Vishwanath." Because Ramakrishna Paramahansa was entering into Samadhi quickly, in that he was having vision. Therefore, he used to see God everywhere. Therefore, what I want to say, I request all of you, do not criticize any temple, any rituals. Somebody is worshipping Ganga, become happy. Somebody worshipping a stone, image, or mountain, or tree, or animal. Oh, I worship pig. All right, let me worship pig. It should not have any problem. You worship whatever. I don't have problem. Why India biggest population has no crime? Because of this. Somebody fighting together, "Oh, I'm going to Hanumanji. There is Hanumanji in my house, I'm going to sit there to pray Hanumanji. Try to just give peace to me. My brother is fighting, my uncle is fighting, my father is not liking me, mother is not liking me, wife is not liking me, children not liking me. Now Hanumanji just look after me." It reduces crime. If there is no Hanumanji, Hanumanji exists or not, doesn't matter. My imaginary Hanumanji. Why is omnipresence God? You are not seeing the omnipresence of God, formless omnipresence is spirit, but still we believe. Therefore, from today onwards, we will criticize no one. We will not criticize any political party. We will not criticize any political leader. What we have to do, we will do it. What we want. All political leaders should work like Gandhiji. All political leaders should know that we do not want judiciary. We do not want bureaucracy. We do not want police. We do not want civil court or high court or supreme court. If I have problem in my village, now God is going to give me insight. Some good persons of the village, they will sit together. They will do justice immediate. In the court, how many years it takes? See, the bureaucrats, when they take the position of, they become some officer, before that see property, nothing. After becoming that administration head, they accumulate a lot of property. You went there to serve the nation or to take the property unnecessary what you don't need it. Therefore, in India, we do not want bureaucrats, we do not want civil judge, we do not want high court judge, we do not want supreme court judge. My judgment will be given in my village, in my town, in my city. By the people who are living there, they know what is right, what is wrong. How about me? How Supreme Court judge will know what is happening in my house? I love my child. I am American. My child is not doing good. He is over drinking. He is overeating meat. He is becoming sick. I gave 2 slap. Don't do that. There is law, they will dial 911. Police come and they took me in jail. I injured your child. I never injured. This is my love. I have authority to look after my children. But you will not allow me. Who made this judgment? Therefore, at least in India we can do it. First India will do it, then all nations will follow it. This is aim of all Kriya Yoga meditator, to have peaceful movement, wise movement. In India, we do not want barrister. Why want barrister? They will argue my case, I will argue my case. What problem I have? Oh, barrister will come, they will read the law. Who made that law? British. I don't want their law. Why British will make a law and I will follow it? I do not want it. I will argue my case in my same village. I will request many good persons are there to solve the problem. I do not want any barrister to come and argue the case. Who is going to pay 3 lakhs rupees per hearing? Have 10 lakhs, then they go to the Supreme Court.
You are going to the civil court. Every week you have to go, because you have to feed advocates. Therefore, India, we do not want barrister, no civil court, no high court, no Supreme Court, no police, no IS, no administration, nothing. We want police and armies to protect the border of the nation. Another nation should not interfere in our living. We will solve our own problem. Therefore, good money should be used for the police. They will help maintaining the border of India. Good army will be there, well equipped. They will help how India should not be invaded by other countries. Other than we don't need anything. This is what we want India. And I am India only for this. Otherwise, my home is America. My home is Canada. There 30 acres ashram is built for me. In Australia, they have great desire to give me ashram. Wherever I will go, ashram will be there. But I had to live in India because you feel very easy to change India. Because India, they worship stone. Easily they will worship human being. In India, we worship tree. Easily we can worship human being. This is very easy in India to love each other. Very difficult in other countries to love each other. Very difficult. In this way, India is great. Its position is the highest and greatest because of this one thing. We have great power to love each other, to sacrifice each other. In other nations, it is very difficult. This is the brief message I want to give today. Let us be ready, sincerely. I am going to make a chariot, I pronounce both. This is called the chariot, this is called the chariot, whatever. We are going to make nice in that there will be toilet and kitchen, because these divine sisters, they cannot go outside. For their cleansing everything, they will be their kitchen, they will be the bus to sit, where our monks will sit. Anybody can help, they can have their own motorcycle, they can have their own car. We are going to have journey from the Jammu Kashmir up to the Kanyakumari, from Himalaya up to the Lanka. We will cover it to give this message. We do not want this. And I am 100% sure, if you have real love, you will be protected. How this ashram is being protected? No police is guarding here. No, nobody is there. अच्छी तरह से हम आपसे आज ये कहना चाहते हैं, जो बहुत आवश्यक है, कि हम सबका लक्ष्य क्या है। आपस में झगड़ा न करें, एक दूसरे से इतना प्रेम करें, कोई झगड़ा न हो, कोई कहा सुनी न हो, कहीं कोर्ट न जाना पड़े, इस पुलिस स्टेशन न जाना पड़े, ये सब है। तो ठीक है, तो कैसे किया जाए? तो इसका एक ही तरीका है कि हम भगवान को, जिससे भगवान कहते कि हे भगवान हमें शक्ति दीजिए, विश्वास करिए को भगवान आपके माँ में है, पिता में है, आपके भाई में है, बहन में है, आपके पति में, पत्नी में, बच्चों में, सब में है, जो आपके परिवार सब में है, लेकिन उनके अंदर दिखता नहीं, उनसे झगड़ा है, आपस में बैठती नहीं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण है मन और बुद्धि। जो मन है, ये मन है अंधा, और बुद्धि क्या है? जिसको कहते हैं लॉजिक, जिसको कहते हैं तर्क वितर्क शक्ति। तर्क वितर्क शक्ति और मन, ये दो चीजें बड़ी बाधा डालती हैं। ये दो हैं क्यों? भगवान इसको बनाया क्यों? क्योंकि भगवान का एक नेचर है। ये नेचर बीज से पता चलता है। एक बीज है, इसके अंदर जन्म है। जन्म का क्या नेचर है? इसके अंदर प्रेम बहुत है। प्रेम की अधिकता के कारण
जितनी पत्तियां हैं पेड़ की, जितनी टहनियां हैं, शाखाएं हैं, जड़ है, तना है, सबको सिमेट लिया अपने में। इस जन्म के अंदर सब कोई विद्यमान है। इस जन्म में सब कोई विद्यमान है। तो ये जन्म देखिए, जब ये अपने रूप में आता है, यहीं से जड़ बना, यहीं से तना बना और यहीं से शाखाएं बनी। इस शाखाओं में पत्तियां आई, पुष्प आया, फूल आया, कांटा भी आया। ये सब के सब इसमें पैक्ड है। अब बताइए, जन्म का वृक्ष में रूपांतरण ये ठीक है कि नहीं? ठीक वैसे कल्पना करिए, परब्रह्म सर्वव्यापी हैं, वो उन्हीं का रूपांतरण है पूरे सृष्टि के रूप में। परब्रह्म ऐसा क्यों होना चाहते हैं? ये उनका गुण है, उनके गुण को हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे नमक का गुण नमकीन स्वाद देना, ग्लूकोज का गुण मीठा स्वाद देना, ऐसे परब्रह्म का गुण है कि एक से अनेक होना। एक से अनेक होने की क्रिया में परब्रह्म मन क्यों हो गए और अंधा मन क्यों हुए? क्योंकि परब्रह्म की शक्ति अंधा मन के रूप में न होती, बुद्धि के रूप में न होती, तो एक से अनेक होने की क्रिया में बाधा आती। एक से अनेक में अपने को व्यक्त करने के लिए, उनका गण व्यक्त होने के लिए अंधा मन का होना जरूरी है कि मन अंधा हो और बुद्धि तर्क वितर्क हो। और ये दोनों समस्या करते हैं। हमें करना क्या है? हमको मन और बुद्धि को शिक्षा देनी है। शिक्षा क्या है? परब्रह्म शिक्षा के रूप में भी है। परब्रह्म उच्चतम शिक्षा के रूप में है, जिसको क्रिया युग कहते हैं। क्रिया युग परब्रह्म का वो रूप है जो सर्वव्यापी, कहीं भी इसको पकड़ लीजिए। आप फ्लाइट में बैठे, क्रिया को पकड़ लीजिए, अभ्यास करिए। आप ट्रेन में हैं, आप कार में हैं, आप नहा रहे हैं, आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप क्रिया को पकड़ सकते हैं। परब्रह्म का वो रूप जो क्रिया योग, उसको पकड़ना सीखिए। उसको पकड़ेंगे तो उससे मन को कहेंगे, भाई ऐसा है कि थोड़ी देर बाधा मत डालिए। लॉजिक कहेंगे बाधा मत डालिए। तो बाधा डालते क्या है? सब में कंपैरिजन करते हैं। ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है। तब मन बुद्धि को नहीं मानते हैं, केवल बेस्ट है, गुड बेटर है ही नहीं। ये अच्छा है, और अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो अच्छा है और अच्छा है भी इसको मानते ही नहीं। प्रत्येक रचना इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है कि उसका गुण हम व्यक्त नहीं कर सकते। हम लिखना चाहें, हम पढ़ना चाहें, हम गाना चाहें, कर नहीं पाएंगे हम। इस तरह से मन और बुद्धि को हम लोग सस्पेंड कर दें थोड़े समय के लिए, इनको शिक्षा दें। जब मन आँखों के माध्यम से देखता है, कान के माध्यम से सुनता है, नाक से गंध, जीवा से स्वाद और त्वचा से स्पर्श से क्रिया, तो मन राग द्वेष करता है। मन से कहिए राग द्वेष मत करिए। आज 24 घंटा नियम बनाइए कि हम राग द्वेष नहीं करेंगे। प्रत्येक रचना की महिमा अनंत और असीम है। मन को समझाइए क्या दिखाई नहीं पड़ता है, जिसको एक हम धूल का कण कहते हैं, जिसको हम डस्ट कहते हैं। धूल का कण क्या है? ये एटम ही तो है। एटम का करेक्शन है, मॉलिक्यूल है। एक एटम में कितना ज्ञान है ये देखिए। इलेक्ट्रिसिटी, एक एटम मैग्नेटिक फील्ड, वाईफाई, एक एटम इतना ज्ञान है को बताता है। अरे आप देखिए ना, आप कितने महान हैं। ये आपकी फोटो, आपकी आवाज़ देखिए यूट्यूब में है कि नहीं? ये हर जगह है। ये कोई अफ्रीका में बैठा है, जो लाइव सेशन जा रहा है वो देख सकता है। उसी समय में कोई चाइना में हो, कोई अमेरिका में हो, कोई कनाडा में हो, कोई गांव में हो, कोई शहर में हो, कोई कमरे में बैठा हो, कोई अपने को रजाई से ढक करके अंधेरे में बैठा हो, लेकिन आप वहाँ पर हैं। आपकी फ़ोटो, आपका चित्र, आपकी आवाज़ वहाँ है। तो कौन ज्ञान देता है? एटम के अंदर से ही तो ज्ञान आया है। अगर आपकी आवाज़, आपका चित्र, आपका रूप सर्वव्यापी है तो आप उससे छोटे कैसे होंगे? प्रत्येक कण के अंदर जो निहित ज्ञान है, इसको पाने से क्या पता चला आप इतने महान हैं कि पूछिए नहीं। आपकी महानता अनंत और असीम है।
इसलिए थोड़ा सा मन और बुद्धि को सस्पेंड कर दीजिए, हम लोग अपने रिलेशन को इस्टेब्लिश कर लें। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मन और विजडम को, लॉजिक को थोड़ी देर सस्पेंड कर दीजिए, केवल ये कहिए कि जो कान से सुनते हैं प्रत्येक आवाज़ में ब्रह्मांड छिपा हुआ है। चाहे कुत्ते की आवाज़ हो, चाहे गाड़ी की आवाज़ हो, चाहे कोई ड्रम पीट रहा हो, चाहे थाली गिर पड़ी उसकी आवाज़ हो, प्रत्येक आवाज़ में ब्रह्मांड पूरा छिपा हुआ है। जितने प्रॉफिट हुए हैं, अवतार हुए हैं, प्रत्येक आवाज़ के अंदर है वो। चलिए छोड़िए, आवाज़ नहीं अच्छी लगती, कोई बात नहीं। सिर से पैर की उंगली तक जो हम अनुभव करते हैं, कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, प्रत्येक परसेप्शन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के क्षेत्र में जितने प्रकार की अनुभूतियां हैं, प्रत्येक अनुभूति के अंदर महाअवतार बाबा हैं। आपको नहीं विश्वास है क्योंकि आपको प्रेम नहीं उनसे, हमें प्रेम है, मैं जानता हूँ। लाड़ी महाशय उसी में है, ज्ञानता स्वामी तेश्वर गिरी उसी में है, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी और जितने भी अवतार हुए सब उसमें हैं। यही नहीं है, जो हमारी मानव सभ्यता है, हमारे पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, पूर्वज के पूर्वज, मनुष्य शत्रुपा से आज तक उसी प्रत्येक परिवर्तन में सब विद्यमान है। इस पर आप प्रयोग करके देखिए। ये जो पूर्वज हैं जो चले गए, चले गए, जो आएंगे, आएंगे भी तो, जन्म भी तो लेंगे, वो सब उसमें है। इतना महान है, इतनी महानता आप में आपको पता ही नहीं है। बुद्धि नहीं मानती भी, चुप रहो थोड़ी देर, मन को बिल्कुल हमारी बात को समझो, बुद्धि और मन को शिक्षा दीजिए कि इसको स्वीकार करके देखो क्या होता है। हमें गोली स्वीकार करते बुखार होता है, पैरासीटामॉल, टाइलनाल, बुखार उतरता है, उतरता है कि नहीं? इसको स्वीकार करके देखिए क्या होता है। सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन में सारे अवतार हैं। जितनी मानव की जनसंख्या मनुष्य शत्रुपा से आज तक और आज से अंत तक होगी, सब उसमें है। यही नहीं, जितने पेड़ पौधे हैं इस समय, जो कभी थे और जो आएंगे, सब उसमें है। सारे जीव जंतु, अरे ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा मान के देखिए क्या होता है। अभ्यास तो करिए, आप देखेंगे आप आदतों के बंधन से मुक्त हो गए हैं। राग द्वेष सही नहीं आप में, किसी प्रकार की एक भी चीज नहीं जो झगड़ा लगवाएगी। तब अपनी महानता का आपको दर्शन होगा। भारत में ही महानता चाहिए। भारत की आबादी बढ़ी, कोई किसी को इतराज नहीं है। आपके 8 बच्चे हैं कि 10 बच्चे हैं, कृष्ण 8 भाई थे, सबसे छोटे वाले थे। तो अगर 8 भाई में से कहा जाता केवल 2 ही बच्चे होंगे तो कृष्ण होते कि नहीं होते पता नहीं। परमहंस योगानंद के कितने भाई बहन थे। तो अपना देश ऐसा कि सब चक्कर नहीं पड़ता, जो आए भगवान ने दिया, नहीं आए तब भी ठीक, आए तब भी ठीक है। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा, सब ठीक, कोई बच्चा नहीं, ये बच्चे सब हमारे हैं। ऐसा देश, ऐसी सभ्यता कहीं पाएंगे नहीं। कितना भाषा, कितने रीति रिवाज। चलो अपने यहाँ इस मन और बुद्धि के कारण घर में कलह हो गई, हमको माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं, शादी भी हो गई, पत्नी पति में नहीं बैठती है, बच्चे हो गए, बच्चे माता पिता में नहीं बैठती है, भाई भाई में झगड़ा है, तो हम करें क्या? बाहर तो मार डालेंगे या अलग हो जाएंगे, अलग अलग फटे। हम क्या करते हैं, हम जाएंगे अपने कमरे में हनुमान जी के पास, हनुमान जी सहाय होइए, इन सबका दिमाग बदल दीजिए, समझते नहीं हैं। कि हम काली के पास जाएंगे, दुर्गा के पास जाएंगे, गणेश के पास जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, हम जाके कमरे में बैठ जाएंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इतने रूपों में हम भगवान की पूजा होती, पहाड़ के रूप में, पत्थर के रूप में, पानी के रूप में, पेड़ के रूप में, जानवर के रूप में। तो जो जैसा करते करने दीजिए। हाँ, उच्चतम पूजा क्या, जो लहरी महाशय करते थे, अपने अंदर भगवान को देखे। जब ध्यान में बैठे थे लहरी महाशय,
तो ध्यान की महिमा देखिए कितनी ऊपर थी कि लाड़ी महाशय ऊपर उठ गए थे, सारे देवी देवता उनको घेर करके उनकी पूजा कर रहे थे। उनकी पत्नी काशी मणि ने देखा, अरे ये क्या मैं देख रही हूँ, ये स्वप्न है कि सही है? तो कहते हैं नहीं देवी उठो, ये सही है, स्वप्न नहीं है। सारे देवी देवता लाड़ी महाशय फिर नीचे उतर आए फर्श पर। तो सारे जो देवी देवता थे, काशी मणि ने उनको प्रणाम किया और देवी देवताओं ने काशी मणि को प्रणाम किया। कहते हैं कि अब उठो, क्रिया दीक्षा का समय आ गया है। तुम्हारे अनेक से कर्म बंधन को मैंने काट दिया था, इसे अभी तक नहीं दिया था। वही तो लाड़ी महाशय है। वहीं बनारस में रख करके विश्वनाथ मंदिर घूमने नहीं गए वो, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर अपने एक एक चीज में अनुभव कर रहे थे प्रत्येक श्वास में। ऐसे आपका जो अस्तित्व है, आपके अंदर कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, जो अनेक स्वाद की क्रिया है, तीता स्वाद है, कड़वा स्वाद है, खट्टा है, मीठा है, जो कुछ भी है, प्रत्येक स्वाद में जितने भी अवतार हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण रचनाएं उसमें है। आप बाबा जी से मिलना चाहते हैं, प्रत्येक स्वाद में, प्रत्येक दृश्य में, प्रत्येक परसेप्शन जो अनुभव करते हैं, कड़ापन, ढीलापन है उसमें। अब आप नहीं मानते ना मानिए, आप उनको उतना छोटा समझते हैं, वहाँ नहीं है, हम तो मानते हैं। इसलिए याद रखिए कि हम लोग किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। मूर्ति पूजा ठीक है कि नहीं, इस पर कुछ भी नहीं सोचेंगे। कोई नदी की पूजा करता, आप खुश हो जाइए, करता तो है किसी की। कोई पहाड़ की पूजा, कोई मूर्ति की पूजा, कोई पेड़ की पूजा, कोई ऐसा जानवर जिसको आप गंदा कहते हैं, सुअर, पिग की पूजा। हमारे यहाँ राक्षस की पूजा होती है, हमारे यहाँ शैतान की पूजा होती है। इसी के कारण इतनी बड़ी आबादी यहाँ साथ रह रही है। हाँ, अब क्या चाहिए कि अब द्वापर युग आ गया है, तो आप उन्हीं भगवान की, जिनको हम पत्थर में खोजते हैं, उसमें भगवान कितना दिखेंगे? इतना छोटा दिखेंगे, पूछिए नहीं, उनका विराट रूप नहीं दिखेगा। वही भगवान आपके कड़ापन, ढीलापन में है। तो अपने अंदर देखें, उनका विराट रूप दिखाई पड़ेगा, जैसे अर्जुन को दिखा था, जैसे लाड़ी महाशय को दिखा था, जैसे ज्ञानता सामित्य से के परमहंस योगानंद को दिखा था। याद रखिए, भारत की इतनी बड़ी आबादी एक साथ क्यों रहती है? क्योंकि इतनी तरह की पूजा पद्धति है यहाँ पर। इस तरह से आज हम लोग संकल्प लें कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी पूजा पद्धति की हम निंदा नहीं करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, गवर्नर है, मुख्यमंत्री, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। हमें अधिकार नहीं है। हम क्या चाहते हैं वो सोचिए, हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे बिना किसी की निंदा किए। हम क्या चाहते हैं कि भारत में न्यायपालिका हम नहीं चाहते हैं। आप पूछिए, आपके घर मुकदमा होगा, जाइए, 4 फीट जमीन के लिए 20 साल लड़ते, मिलती नहीं है। सिविल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके बाद आपके बच्चे लड़ेंगे, बच्चे के बाद बच्चे लड़ेंगे, खत्म नहीं होगा मुकदमा। अगर क्रिमिनल मुकदमा है तो ठीक है, आप गवाही देने जाएंगे, मैं मार दूंगा आपको। तो ऐसे सिविल कोर्ट, ऐसे हाई कोर्ट, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जहाँ ये व्यवस्था ही नहीं है कि आदमी वहाँ कोई सही बोल सके, सही बोले तो निकलते ही गोली मार दिया जाएगा। तो हम कोर्ट यहाँ चाहते ही नहीं। भारत में न हम सिविल कोर्ट चाहते हैं, न हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट। हमारे घर का कोर्ट घर में होगा। हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु, बैठ कर आपस हम लोग सुलह कर लेंगे, समझ लेंगे, थोड़ी सी गलती हुई माफ़ी मांग लेंगे, एक दूसरे से गले मिल लेंगे हम। और गांव है, गांव का मुकदमा गांव सॉल्व कर देगा। जहाँ पर है वहीं के लोकल लोगों को ले लीजिए, उनको पता सही गलत क्या है, न्याय वो देंगे। गलत एफिडेविट दे के हम कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, ईश्वर के नाम पर झूठी कसम खाते हैं। तो हम भारत में ऐसा कोर्ट नहीं चाहते हैं। यहाँ कोई बैरिस्टर नहीं चाहते हैं, कोई एडवोकेट नहीं। हम अपना आर्गूमेंट खुद करेंगे। हम अरे लॉ नहीं आता, लॉ किससे बनाया? अंग्रेजों ने बनाया है लॉ, हम नहीं चाहते उस लॉ को। अंग्रेजों ने लॉ कानून बनाए और आप बैरिस्टर बनिए, हमारा मुकदमा लड़िए, हम 2.5 लाख रुपया कहाँ से पाएंगे देने के लिए? फिर आपकी फाइल मोटी होती जा रही है, मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, आपकी बिल्डिंग बढ़ती जा रही है, आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। इतना पैसा बढ़ा कि आपके लड़के सुसाइड कर लिए, तो आपके घर में अव्यवस्था हो गई उस पैसे से, तो उससे दोषी तो हम भी होंगे।
आपकी वकालत ऐसी चमकी, इतना पैसा मिला कि आपके लड़के ही बर्बाद हो गए उससे। इसे भारत देश में हम न्यायपालिका नहीं चाहते हैं, ना कोई पुलिस चाहते हैं पुलिस हमको कंट्रोल करे, हम अपने खुद कंट्रोल करेंगे। हम नहीं तो हमारे घर वाले कंट्रोल करेंगे, हमारे गांव वाले कंट्रोल करेंगे, हमारे शहर वाले कंट्रोल करेंगे। इस तरह से ना पुलिस चाहते, ना तो कोई रेवेन्यू ऑफिसर नहीं चाहते, गलत नापते हैं वो। लेखपाल है, पटवारी है, कितनी बार नपाई होगी आश्रम की? 100 बार नपाई हुई है कि एक जमीन गलत है, हर बार सही निकली, फिर आते हैं नपाई करने के लिए, मैं भगा देता हूँ, गेट आउट फ्रॉम हियर। चीफ जस्टिस ने नाप करके दे दिया क्या है, तो आप कितनी बार नपाएंगे? आप किसी लेखपाल कानून दे दिए 2 लाख रुपया, गलत नाप देगा 4 फीट, और 4 फीट का झगड़ा है। हम नहीं चाहते कोई रेवेन्यू, हम खुद ही अपनी ज़मीन नाप लेंगे, अपना घर खुद ही नाप लेंगे हम। तो रेवेन्यू ऑफिसर लेखपाल से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक कौन नहीं लेता है घूस? कुछ होंगे नहीं लेते हैं, और नहीं लेते हैं तो तनख्वाह उनकी कितनी ज़्यादा क्यों है? वो भी तो एक घूस है सिविलाइज्ड वे में। तो इस देश में हम रेवेन्यू ऑफिसर्स नहीं चाहते हैं, कोई पुलिस नहीं चाहते, हम अपने कंट्रोल कर लेंगे। हम बैरिस्टर नहीं चाहते, हम कोई लॉ नहीं चाहते यहाँ पर। हमारा लॉ प्रेम का होगा बस। सब क्रिया का अभ्यास करेंगे, ये हमारा लॉ है, ये हमारा भगवान है। इसको इतना फैलाएंगे कि भारतवर्ष एकदम बदल जाएगा। तो कितना यहाँ पर सुख होगा सोचिए। झगड़े झंझट ना हो, सुबह से शाम तक प्रेम ही प्रेम। खेतों से प्रेम उर्वरक बनाए, पेड़ों से प्रेम, जानवर से प्रेम, आपस में प्रेम। प्रेम करने की फुर्सत ही नहीं तो लड़ाई कब करेंगे हम? ऐसे भारतवर्ष की कल्पना करिए। इसीलिए हम हैं भारतवर्ष में, बता दें आपसे। नहीं तो अमेरिका हमें बहुत मानता है। अमेरिका हमें कितना प्रेम करता है आपको पता नहीं है। कनाडा हमें कितना प्रेम करता, 30 एकड़ वहाँ पे बना करके आश्रम दिया हुआ है। हम रहते भारत में, स्पिरिचुअल हेड हैं उसके। ऑस्ट्रेलिया बना के दे रहे हैं, यूरोप में देने जा रहे हैं, सब जगह तो सब तैयार है। लेकिन हमें भारत में इसलिए रहना है, इससे बढ़िया देश नहीं कोई। इतनी पॉपुलेशन, हम सुख रहते हैं, हम खुश रहते हैं। हमारे एक बच्चा हो या 10 बच्चा हो, कहते भगवान आए हैं। हम कभी नहीं कहते कि हाँ पॉपुलेशन नियंत्रण। कोई हमें जानवर है क्या कि हमारा पॉपुलेशन नियंत्रण आप मशीन से करेंगे? हम ज्ञानी क्रिया ध्यान करेंगे, हम खुद ही पॉपुलेशन नियंत्रण हो जाता है अपने आप। तो फिर ये पुलिस और आर्मी हमें चाहिए भारत के बॉर्डर की रक्षा करने के लिए। खूब पुलिस को अच्छी व्यवस्था दीजिए, बुलेट प्रूफ जैकेट दीजिए, बुलेट प्रूफ कार दीजिए, ऐसे आर्मी को दीजिए, वेल इक्विप कर दीजिए कि बाहर के देश इन्वेड न करें। जैसे भारत किसी भी देश पर लड़ाई नहीं करता जमीन पाने के लिए, वो भी हमारे ऊपर न करे कुछ दिनों तक। जब क्रिया पूरे विश्व में फैल जाएगा तब पुलिस और आर्मी भी नहीं चाहिए। ऐसे भारतवर्ष को बनाना है, कठिन नहीं है, इट विल बी डन। हमारे जाने पहले हो जाएगा ये, बता दें आपसे। नहीं तो क्या हम पागल हैं यहाँ पर चिल्लाएंगे बैठ करके? हमको दिखता हो जाएगा। अगर आश्रम बन गया, ये आश्रम रूपरेखा बन गई है तो देश बन जाएगा। हाँ, क्रिया का आश्रम प्रयाग में नहीं बना होता, न बन पाता तो दिक्कत होती। कितनी बाधाएं हुई, कितनी बाधाएं हुई आपको नहीं पता, हर कदम पर बाधा। अभी कुछ साधु लोग घुस आए थे, ट्रेस पास किए थे, सबकी वीडियोग्राफी हुई, FIR हुआ। ट्रेस पास करना मना है। तो इस तरह से हमको आपको मिल करके पहले ये तय कर लेना है कि क्रिया योग ईश्वर का वो रूप है, ये जो सर्वव्यापी है। ये इस क्रिया योग को पकड़िए। हम तो ऐसा भगवान चाहते हैं जो हमें फ्लाइट में भी मिले। क्रिया फ्लाइट में बैठ करके अभ्यास करिए। हम ऐसा भगवान चाहते हैं जो बस में मिले। हम ऐसा भगवान चाहते हैं जो स्विमिंग पूल में तैरते वहाँ भी मिले। तो ऐसा भगवान है क्रिया योग का ज्ञान। क्रिया को हर क्षण पकड़े रहिए, बस सब चीज़ अपने आप हो जाएगी। ये था बहुत ही महत्वपूर्ण आपसे जो हम कहना चाह रहे थे कि ये जो तर्क वितर्क है, मन है, बुद्धि है, ये इसलिए आवश्यक कि इसकी वजह से परब्रह्म एक से अनेक रूपों में स्वयं अपने को व्यक्त किए। वही अंधा मन के रूप में हो गए, वही लॉजिक के रूप में हो गए, वही उसका उपयोग करके खुद अपने विस्तार को प्राप्त कर लिए। लेकिन हमारा क्या लक्ष्य है कि हम मन और बुद्धि को शिक्षा देंगे। हम शिक्षा देने का भी ये अधिकार भी भगवान का ही है। भगवान ही क्रियायोग के रूप में है,
अब क्रिया को आज से पकड़ लीजिए खूब अच्छे तरीके से और राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए परमहंस योगानंद कितना छटपटा रहे थे जब देश बट गया। जब गए थे 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण में, तो उनके अंदर से बड़ा कष्ट हो रहा था, देश जो बट गया। और देश कैसे बटा आपको पता है? देश गांधी का नहीं बटा। गांधी ने कहा था कांग्रेस डिजॉल्व कर दीजिए। गांधी ने कहा था जो कांग्रेस वाले सब मिनिस्टर्स हो गए, मिलिटेंट हैं ये, इनका मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, हमारे पास सब किताब आ गई है। और नेहरू कहा था स्टेप डाउन। पटेल कहा था कि गांव की जरूर, लेकिन अब किसानी भूल गए हैं, सारे किसान के लोग वही प्रधानमंत्री होंगे और नेहरू उनके सेक्रेटरी हो जाए, पटेल लोकमान्य तिलक सब लोग सेक्रेटरी हो जाए। गांधी ने ये कहा था, सोचिए कि अगर ये कहीं मैसेज फैल गया तो पूरी इंडिया तो सब उखाड़ के फेंक देगी। नेहरू को, पटेल को, सब लोग जो बैठ बन रहे हैं ये सब ने कहा गांधी जी अब चले जाएं तो अच्छा है। जब सब कहते चले जाए तो गांधी जी चले गए। लेकिन गांधी का ज्ञान नहीं गया है, गांधी जी हर दिल में है, बता दें आपसे हम। तो इसे हम लोग जब इस चीज़ को फैलाएंगे हम कि हम भगवान को पकड़े हैं हर जगह, क्रिया का ज्ञान ही भगवान का रूप है। लाहिड़ी महाशय ने कहा है कि जीवन का लक्ष्य परब्रह्म है। परब्रह्म है कहाँ? उनका क्रिया ही सत्य है, क्रिया ही भगवान है। तो इस क्रिया को कैसे पाएं? कहते मोर और मोर, इसको और अभ्यास करिए, बनत बनत बन जाए। कितना करें सिंगुलरिटी, जब तक ये न पता चल जाए परब्रह्म ही सब रूपों में है। तो लाहिड़ी महाशय की शिक्षा है, क्रिया ही सत्य है, क्रिया ही भगवान है। ये था आज का प्रोग्राम। दिस इज फॉर टुडे। आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आईज। आंखों को बंद करके सिर से पैर की अंगुली तक अपने अस्तित्व में एकाग्र होकर के एक वैज्ञानिक बनिए और ये स्वीकार करिए जितने अवतार हो चुके हैं या जो हैं या जो आएंगे, सब के सब ब्रह्मांड की समस्त रचनाओं के साथ सिर से पैर की अंगुली तक इसी में विद्यमान है। Keeping eyes closed, feel head to toes. Within head to toes, there exist prophets of all ages and lands, with all creations of the cosmos. They exist within our own existence, head to toes. Accept this as a scientist and follow the practice. What is the practice? Feel head to toes more and more. And whatever you feel, accept it supreme, the best and highest. अब दोनों हथेली को हम सिर के पीछे रखें। Place both palm on the posterior surface of head. पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। Pay attention, teach and every part of head to toes. Feel head to toes more and more. Each and every perception within head to toes we feel, there exist all prophets of all ages and lands, with the creations of cosmos. पैर की अंगुली से लेकर के सिर तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। इसमें जो कुछ अनुभव हो रहा है, प्रत्येक अनुभूति में विद्यमान है सभी अवतार ब्रह्मांड की समस्त रचनाओं के साथ। इसलिए जितने भी परिवर्तन है, जितने चेंजेस की अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्येक परिवर्तन, प्रत्येक परसेप्शन, प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है।
फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम अल्टरनेटली। हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथों को मोड़े और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स। फील ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ हेड टू टोज मोर एंड मोर। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। हम जो भी अनुभूति कर रहे हैं, प्रत्येक अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है। ड्यूरिंग द प्रैक्टिस वी आर डूइंग, during this each and every perception we feel within, there exist all things. Therefore, value of each and every perception is beyond limit. Its glory is infinite. Have this concept, idea and thought. Feel head to toes more and more. This is such simple practice and most effective because this practice brings this ultimate truth, that Parbrahm alone exists. It is Parbrahm who has become this physical, astral and causal universe. अच्छी तरह से याद रखिए कि ये जो कुछ पंक्ति का अभ्यास है, कुछ लाइनें को सुन करके जो हम अभ्यास कर रहे हैं, इनकी महिमा अनंत और असीम है। क्योंकि जब इसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो पूर्ण सत्य की अनुभूति होती है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, वही सब रूपों में समाहित है। दाहिना और बायां पैर कड़ा ढीला करें, टर्न्स रिलैक्स, राइट एंड लेफ्ट लेग। पैर की अंगुलियां, पंजे, पिंडली, जांग, नितंब, पीठ, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर अनुभव करें। एक एक अनुभूति की महिमा अनंत है, असीम है। फील राइट लेग, लेफ्ट लेग, बैक, राइट, लेफ्ट, एब्डोमेन, चेस्ट, आर्म्स, राइट, लेफ्ट, नेक, फेस, हेड, and all changes within. Each and everything we feel is having limitless value. With this very shortest practice, let us practice double breathing, followed by stretching relaxation. इस संक्षिप्त अल्प अभ्यास के साथ आइए अब हम 2 बार में श्वास से प्रश्वास का अभ्यास करते हुए स्वरूप की अनुभूति गहराई से करें। Let us bow down to our devotion we had in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। जब बैठेंगे, now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.